the state that's been battling acute financial crisis. Note that the debt liability in the state of Himachal currently stands at 90,000 crore rupees, which is said to be the highest that the states have been facing. Let's also play out that confrontational sequence with Chief Minister Sukhwinder Sukhu on the financial crisis that has gripped the state, as a result of which salaries are not being paid to the government employees. आपको अच्छा लगता है? सुबह नहीं, अभी सुबह 12 बजे 12 बजे आपको अच्छा लगता है? सुबह नहीं, अभी सुबह 12 बजे 12 बजे नहीं, अभी सुबह 12 बजे 12 आपको अच्छा लगता है? सुबह नहीं, अभी सुबह 12 बजे 12 बजे All right, so Chief Minister Sukhwinder Singh Sukhu is clearly in denial when it comes to the financial crisis that the state has been grappling for long now. Let's go across to Lalit. He's joining us from Shimla, I believe. Lalit, anything you're learning from your sources in the government as to what is the plan of action of the government, so as to say, when it comes to especially paying the salaries of the government employees that's been stalled for over 5 days now? Well, Samiksha, if we talk about the crisis which the hill state Himachal right now is going through, what we are learning that they are just waiting for the DRG grant, the deficit revenue grant from the center. And what we are learning that today or tomorrow the grant would be released from the center, and after that the salaries of the government employees and the pensioners would be credited. But it's for the first time that the Himachal Pradesh is bearing such brunt, such crisis, such financial situation has occurred in the hill state. Looking into that, if we talk about the most affected persons are the government employees. Right now, I'm in the Himachal Pradesh Secretariat. Behind me, you can see the government employees that they are working but protesting, having black badges on their chest. They are protesting from the state government that the salaries have not been released. It's been 4 days of the month, and the way they are feeling it, they are quite angry and furious from the state government. Let me take across to the government employees. First of all, the employees of the secretariat, what they are feeling. चौथा दिन हो गया भाई, कितनी दिक्कत और कितनी परेशानी आ रही है? वो तो सर हम ही जानते हैं। बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं, वहाँ हॉस्टलों का खर्चा दें या उनकी फीस का, या शिमला में भी राशन पता, हर चीज़ का पता है। हम तो हर जगह में बता रहे हैं कि भी ऐसा आज तक नहीं हुआ। इन्होंने अगर हमारे को 10 दिन पहले बताया होता, ऐसा नहीं था, हम भी करते कुछ प्रबंध। इन्होंने तो एकदम ही कर दिया। इसके लिए तो बहुत ही गलत उठाया इन्होंने। पता क्यों ऐसा काम किया। ना कोई 15 दिन में कोई ऐसी समस्या भी नहीं आई। वो भी दिखता हमारे को, कोई फ्लड आया होता भाई वाकई पैसा ये कोई। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि आप महिला हैं, घर भी चलाते हैं सर, ऑफिस भी आ रहे हैं, पैसे नहीं आए 4 दिन हो गए, कितनी दिक्कत परेशानी हो रही है? दिक्कत ही दिक्कत है, क्योंकि जो हमारे कर्मचारी हैं यहाँ पर, चाहे महिलाएं हैं चाहे पुरुष हैं, उनमें सब में ही दिक्कत आएगी, क्योंकि हमारे लोग बहुत ईमानदार, कर्मचारी वर्ग हमारा बहुत ईमानदार है और शांति प्रिय हमारी स्टेट है, जहाँ पे ऐसा कभी इतना शोर नहीं होता। अगर ये चीज़ें पहले पता हो तो बेचारे शांत भी हो जाते हैं कि कोई बात नहीं, हो जाएगा। लेकिन इस बार तो ऐसा हो कि पता ही नहीं चला और मैनेज नहीं कर पाए, और जिससे सबको दिक्कत आ गई। महिलाओं को तो अब घर चलाना है, खाना बनाना है, राशन लाना है, दूध का देना है, हर चीज़ का बिल है, बच्चों को देखना है। तो ये चाहे कर्मचारी हैं चाहे कर्मचारी नहीं है, महिलाएं, ये सबको ही दिक्कत है। और ये हमारे कर्मचारियों को नहीं, अधिकारियों को भी इसके समस्या का मतलब करना पड़ रहा है। जिनको इतनी सैलरी मिलती है वो भी परेशान है, क्योंकि सैलरी एक फिक्स सैलरी होती है जिसमें गुजारा करना पड़ता है। तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत। हमारे साथ जो एम्प्लॉयज़ यूनियन है उनके प्रधान भी मौजूद है। और संजीव जी, पहले भी आप लगातार सरकार से मांग करते आए हैं, अभी आपने चिट्ठी लिखी है, कोई जवाब आया है? क्योंकि तनख्वाह अभी तक नहीं आई है। चीफ सेक्रेटरी को जो आपने चिट्ठी लिखी, क्या दरख्वास्त की गई है,
क्या हल निकाला जाए? हाँ, नमस्कार दीक्षित जी। हमने कल एक लेटर लिखा है, हम स्वयं मुख्य सचिव महोदय से मिले थे, तो हमने उनको चिट्ठी दी कि आप जितने भी कंसर्न यहाँ पे जो बैंक्स है उनके मैनेजर को आप एक लेटर लिखिए कि जो हमारी ईएमआई जाती है, एक तो उसको डेफर किया जाए, दूसरा इस पे किसी भी तरह की पेनल्टी ना लगाई जाए, क्योंकि जो ईएमआई है वो तो पहली या 2 तारीख को चले जाती है। तो इससे क्या हो रहा है कि इस पे हमारे लोगों को जो है पेनल्टी लग रही है। तो अभी तक मुझे नहीं मालूम कि इस पे क्या एक्शन हुआ है, लेकिन we'll have to interrupt you, Lalit.